हाँ जी, हमने पॉलिटिक्स का उस दिन ये फर्स्ट वाला टॉपिक किया था। इमिटेशन का भी और ट्रेजेडी की डेफिनेशन के ऊपर भी हमने कुछ पॉइंट्स निकाले थे। ट्रेजेडी का जो पोएटिक मैनर्स होते हैं वो क्या होते हैं, और ट्रेजेडी का मीडियम क्या है, ट्रेजेडी का प्रोसेस क्या होता है जिसमें हायर प्लेस से एक आदमी लोअर प्लेस की तरफ आता है, और कॉमेडी का मीडियम क्या है, अ पर्सन मीट्स द हायर प्लेस फ्रॉम द लोअर वन, and a person meets a lower place from a higher one. This is a process of a tragedy. When a person meets higher from the lower, especially in comedy, lower characters are painted in comedy in a ridiculous way, and in tragedy, higher characters are presented. Higher characters like kings, like princes, like noble people, like journal. Higher stuff is presented in tragedy, whereas in comedy, lower stuff is presented. Lower stuff. This is medium, and that stuff, you may call it stuff or medium. इसमें हमने डिफरेंस पोइट्री का और हिस्ट्री का भी देखा कि जो हिस्ट्री है, दिस इज नॉलेज ऑफ द पास्ट, एंड पोइट्री दैट्स बेटर, far better than history, because it expresses universal, general, not particular. So this we have read this topic. What's meant by nature by Aristotle: the creative force, the productive principle of the universe. This is called nature by Aristotle, and it's very confusing question for the students, because they think that nature, that's only natural phenomena, that's only natural beauty, like that of scenery, like that of natural scenes. It's confusing for the students. So you must know the difference, the different definition according to Aristotle related to nature. Nature is the name of a creative force according to Aristotle. ये एक confusing point है, इसलिए you must know the difference. What are the objective of poetic art? Man in action. ये पोइट्री का के ऊपर एक इंसल्टिंग रिमार्क है, और जाहिर है पोइट्री की इंसल्ट प्लेटो ने की है. पोइट्री द शैडो ऑफ शैडोज, एरिस्टोटल के इस पोइटिक्स के रेफरेंस से अगर हम देखें तो एरिस्टोटल का जो एक बैकअप में जो एक कंटेम्प्रेरी है, उसका टीचर प्लेटो है. अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो सबसे पहले पोइट्री के ऊपर अटैक करने वाला, बाकायदा अटैक करने वाला प्लेटो था. प्लेटो से पहले हम देखते हैं कि वो सारे लोग पोइट ही कहलाते थे, और जितना जो मीडियम था, लिटरेचर का मीडियम भी पोइट्री था. प्लेटो फर्स्ट टाइम in a regular manner he attacked over poetry, he blamed poetry, and he overall insulted poetry. He said that poetry is the shadow of shadows. He also said that poetry is imaginative and related to idea. Aristotle defended the word idea, and he said that idea is very close to reality. All achievements, all concrete structures, all concrete structures, all achievements are depended over idea. So idea is the very first step about formation, about concrete object. Idea is the first step.
So idea is not different from reality. It's not far of distance from reality. It's a very first step which leads to reality. ये पहला वो स्टेप है जो रियलिटी की तरफ जाता है। इस उसने आइडिया के वर्ड को इमेजिनेशन के साथ जोड़ा, प्लेटो ने। उसने आइडिया के वर्ड को इमेजिनेशन के साथ जोड़ा और एरिस्टोटल ने आइडिया के वर्ड को रियलिटी के साथ जोड़ा। ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सादा एक अंदाज से मैं लिख देता हूँ। प्लेटो associates the word idea with copy and imagination that is far from reality। ये हम उसके हर बात को इस सेंटेंस के अंदर, प्लेटो का जो आइडिया को लेके एक अटैक है इस सेंटेंस के अंदर मैंने उसको नीट कर दिया है। Plato associates the word idea with copy and imagination, which is far from reality. This is the view of Plato. अब हम देखते हैं एरिस्टोटल associates the word idea with reality, which later on needs concretion in the world। अगर हम सादा सी बात देखें तो प्लेटो ने आइडिया को इमेजिनेशन और रियलिटी से दूर करार दिया और इमेजिनेशन के साथ जोड़ा। प्लेटो ने इसी वर्ड आइडिया को रियलिटी के साथ जोड़ा। Idea and rail, who said that there was no difference between idea and rail। इसने कहा था कि आइडिया और रेल में कोई फर्क नहीं है। जाहिर है आइडिया को रियलिटी के साथ जोड़ने वाला एरिस्टोटल था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके हमने निकाले थे कि प्लॉट क्या है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, प्लॉट इज अ सोल ऑफ ट्रेजेडी एंड एक्शन मस्ट बी एज अ होल। ये ट्रेजेडी की फॉर्मेशन के असूल पैरामीटर बता रहा है वो कि ट्रेजेडी में ट्रेजेडी के जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। प्लॉट इतना इंपॉर्टेंट है कि प्लॉट ये रूह की मानिंद है कि ट्रेजेडी के अंदर प्लॉट निकाल दें तो ट्रेजेडी डेड हो जाएगी। ये एरिस्टोटल का सेम है। और एक्शन इट मस्ट बी एज अ होल। एज अ होल की वजाहत भी हमने की थी, जिसकी प्रॉपर लेंथ हो, और मैग्नीट्यूड का मीनिंग जो है वो साइज और लेंथ है। ये भी एक शॉर्ट सा पॉइंट है। प्लॉट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्लॉट में डिवाइड किया इसने। पेरिपिटिया, एनाकॉर्सिस, इनका मतलब क्या है? आपने देखा दोनों चेंजेस हैं। पेरिपिटिया चेंज इन फॉर्चून रिलेटेड टू हीरो। एनाकॉर्सिस दिस इज अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। ये हमारा सेकंड टॉपिक था। अब आ जाए आइडियल ट्रेजिक हीरो। एक सिंपल सी इसके अंदर भी सिंपल से पॉइंट्स हैं। यू नो दैट आइडियल ट्रेजिक हीरो, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। इसको फॉलो इसकी डेफिनेशन आप चाहिए। आपकी शोर आ रहा है पीछे से आप लोगों को। तो हमजा तेरा ही बहुत शोर आता है। आइडियल ट्रेजिक हीरो को डिफाइन करना आप लोगों को आना चाहिए। इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी क्लास में। An intermediate kind of person, not preeminently virtuous or kind, brought about his tragic downfall because of his tragic flaws। ये जो डेफिनेशन है ये आपको आनी चाहिए। An intermediate
kind of person, not free, eminently virtuous or wise, brought about his downfall, छोटी सी डेफिनेशन है, ये आपको आनी चाहिए। प्लॉट को डिफाइन करना आना चाहिए। पहले तो प्लॉट के ऊपर आपने सिर्फ एक स्टेटमेंट, एक रिमार्क उसका पढ़ा है कि ये ट्रेजेडी की रो होती है। इसका जो एक मीनिंग है प्लॉट का, उसके ऊपर हमने बात की थी। सीरीज ऑफ इवेंट्स इज कॉल्ड प्लॉट। ये उसका समझ लें कि उस वर्ड का मीनिंग है, उसका कंसेप्ट है। यहाँ पे प्लॉट को एक तरीके से उसको लिखा हुआ है, प्लॉट इज द अरेंजमेंट ऑफ दीज इंसिडेंट एंड इवेंट्स, इंसिडेंट्स एंड इवेंट्स। या ये जो मैंने लिखा है ये इसका एक मीनिंग है, एक उसका कंसेप्ट है। अगर वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट में पूछेगा तो ये देगा, वो सीरीज ऑफ इवेंट्स, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, इवेंट्स और इंसिडेंट्स, ये वर्ड इन दोनों में से इस्तेमाल कर सकता है। दिस इज प्लॉट। प्लॉट के ऊपर हमने किस्में देखी हैं, दो किस्में हैं, एक सिंपल प्लॉट है और एक कॉम्प्लेक्स प्लॉट है। सिंपल प्लॉट को फ्लैट प्लॉट भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स का दूसरा नाम है राउंड प्लॉट। मैग्नीट्यूड ऊपर हमने देख लिया कि मैग्नीट्यूड लेंथ और साइज को कहते हैं। यहाँ पे भी वही दो लिखे हुए हैं कि प्लॉट का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि प्लॉट की प्रॉपर एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। प्लॉट मस्ट हैव अ, इट मस्ट हैव अ सर्टेन मैग्नीट्यूड, इसका एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये भी हमने ऊपर भी रीड आउट किया है, ये सारा पैराग्राफ उसके ऊपर ही है। लॉजिकल सिमेट्री, दिस मस्ट बी देयर इन प्लॉट। लॉजिकल सिमेट्री, दिस इज कॉल्ड रीजनेबल साउंड प्रॉपर बैलेंस, यानी प्लॉट के अंदर एक अरेंजमेंट होनी चाहिए, एक मुकम्मल एक बैलेंस होना चाहिए, एक तवाज़ुन होना चाहिए। पर्सपिक्विटी में टू से उसको एक बड़ा मुनज़्ज़म होना चाहिए जिसके अंदर नफासत हो, प्रॉपर बिगिनिंग, प्रॉपर मिडल, प्रॉपर एंडिंग, दिस इज अ प्रॉपर प्लॉट, दिस इज अ प्रॉपर मैग्नीट्यूड। प्रॉपर मैग्नीट्यूड, दिस इज एक्चुअली द वेरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ प्रॉपर प्लॉट। एक प्लॉट का जो मेयार है वो कैसे हम उसको जज करेंगे, बिकॉज ऑफ लॉजिकल सिमेट्री वी कैन जज द प्लॉट ऑफ अ स्टोरी रिलेटेड टू ट्रेजेडी और कॉमेडी। हम देखेंगे उसका बैलेंस कैसा है, अरेंजमेंट ऑफ द इवेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंसेस, कहीं उसका जो तवाज़ुन खराब तो नहीं हुआ, उसका कहीं उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कहीं खराब तो नहीं है। This all we perceive and we will make an analysis about, making an analysis related to plot। प्लॉट का तज्जिया करते हुए हम देखेंगे कि प्लॉट के अंदर बैलेंस है। ये जो वर्ड ऑर्गेनिक होल है, दिस इज रेलेवेंसी। प्लॉट के अंदर एक ऑर्गेनिक होल होना चाहिए। ऑर्गेनिक होल कहते हैं रेलेवेंसी को, मसलन कि उसके अंदर एक बाकायदा तौर पे जैसे हम कहते हैं कि जब आपने क्वेश्चन लिखना है आंसर आपका रेलेवेंट होना चाहिए, दिस इज रेलेवेंसी। ऑर्गेनिक प्लॉट, दैट्स कॉल्ड रेलेवेंसी इन अ स्टोरी। ये जो स्टोरी आप लिख रहे हैं वो रेलेवेंट की आप बात करें, आउट ऑफ रेलेवेंस और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यू कांट गो। इफ यू आर गोइंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इट मींस यू आर लूजिंग ऑर्गेनिक यूनिटी,
You are losing relevancy related to the tragedy. So this is essential element. You must sustain and maintain unity, relevance, organic whole. You must care about this. Wait for a minute. So organic whole, this is also called organic unity in its action. Unity, this is relevancy. You must write according to the title, according to the actually the topic, to topic accordingly. An action is a change from happiness to misery. ये जो चेंज है ये है, हम इसको ऊपर हमने पेरिपिटिया के अंदर भी इस चेंज को देखा है. चेंज इन फार्सून, दिस इज कॉल्ड पेरिपिटिया. ये उसी लाइन की वजाहत है. एन एक्शन इन अ चेंज फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी, दिस इज कॉल्ड पेरिपिटिया. ये उस टर्म के अकॉर्डिंगली इसी को पेरिपिटिया कहते हैं, जिसमें चेंज है फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी और वाइस वर्सा. And tragedy must depict one such action. This is again about a plot. ये जो दो तीन वर्ड्स हैं, ये प्लॉट का मीनिंग है. अरेंजिंग द इंसिडेंट्स, दिस इज कॉल्ड प्लॉट. अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट्स, दिस इज कॉल्ड प्लॉट. अरेंजमेंट्स, या जिसको मैंने सीरीज ऑफ इवेंट्स का नाम दिया है, सीरीज को आप कह सकते हैं अरेंजमेंट. Arranging the incidents, this is called a plot. Again, organic unity in the next page. On the next page, organic unity. I told you this is relevancy. This is the unity according to the topic, according to the title, which is going to be dealt. This word probability, this is the tendency of convincing. ये वो टेंडेंसी है जो ऑडियंस या रीडर को कन्विंस करती है. Probability, I am just underlining the word probability as per its meaning. This is convincing. Probability means convincing. Readers, while reading, while watching a tragedy, they feel that there is proper logic in all the happenings. हर वाक़े के पीछे जब आपको एक प्रॉपर लॉजिक नजर आता है तो ये कन्विंसिंग होता है. ये ऑर्गेनिक यूनिटी जो आपने वर्ड पढ़ा है वही है यूनिटी ऑफ एक्शन. यूनिटी, ये जो इस तरह एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर लिख देता हूं. What are the three unities mentioned by Aristotle? In forming a tragedy, there must be three unities: unity of time, place,
टाइम, प्लेस एंड एक्शन। ऐसे ही उसमें ये 3 यूनिटीज होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस। मैंने आपको बताया था कि जो प्लॉट है उसकी जो लेंथ है लाइक द मूवमेंट ऑफ द सन होनी चाहिए। एरिस्टोटल रूल्स आउट personate plots for tragedy, पर such plot does not arouse tragic emotions। फिर वो प्लॉट के बारे में डिटेल है कि सिंपल प्लॉट, कॉम्प्लेक्स प्लॉट, प्लॉट्स बेस्ड ऑन अ डिपिक्टिंग इंसिडेंट्स ऑफ सफरिंग। पेरिपेटिया एनागोरसिस की वजाहत है। पेरिपेटिया दिस इज चेंज इन फार्सून from happiness to misery. This is change in person. Anagoras, this is the change from knowledge, from ignorance to knowledge. That's called anagoras. And these two techniques are found in Oedipus Rex. बहुत एक जबरदस्त तरीके से और बड़ी क्लियर तरीके से ये दोनों टर्म्स एडिपस रेक्स के अंदर पाई जाती हैं। चेंज फ्रॉम स्टेटस, आप जानते हैं कि वो एक बादशाह था और किस तरह आंखों को निकाल के एक भिखारियों की तरह वहां से निकल जाता है। ये है चेंज इन स्टेटस फ्रॉम हैप्पीनेस टू मिजरी। और जो एनागोरसिस है, दिस इज इट्स अ चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। व्हेन ही कम्स टू नो द रियलिटी अबाउट हिज पेरेंट्स, दिस इज चेंज फ्रॉम इग्नोरेंस टू नॉलेज। ये जो वर्ड एनागोरसिस है ये रिकॉग्निशन का मुतबादल ही है, यानी जब आपको रिकॉग्नाइज कर जाते हैं, आपको पता चल जाता है, यू कम टू नाउ अबाउट योर रियलिटी, अबाउट योर पेरेंटेज, अबाउट ऑल दी ambiguities, you come to know, that's called recognition, and in a technical term this is called anagosis। एरिस्टोटल, ये जो पोएटिक जस्टिस है ये वो है कि जब आप समझते हैं कि हाँ इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, इसको कहते हैं पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस, व्हाट इज दिस? ये एक शॉर्ट पॉइंट है। When we think that a certain man, a certain person must be punished because of his character, because of his sins, ये जब हम समझते हैं ना कि फलां ने गुनाह किया है तो उसकी सजा उसको मिले, तो ये है पोएटिक जस्टिस। मिसाल के तौर पर जब विलन को किसी ड्रामे, किसी मूवी में जब उसको मार पड़ती है ना आखिर पे, तो हम कहते हैं हाँ इसको ऐसे ही होना चाहिए था, इसके साथ इसकी पिटाई होनी चाहिए थी। ये है पोएटिक जस्टिस। याद रखना कि एरिस्टोटल इसका कायल नहीं है। ये लाइन में अंडरलाइन कर रहा हूं, एरिस्टोटल डज नॉट कंसीडर पोएटिक जस्टिस नेसेसरी फॉर ट्रेजेडी, इज नॉट एग्री ओवर दिस पोएटिक जस्टिस। फॉर एग्जाम्पल वो एग्री नहीं है कि एडिपस को जो सजा मिली है ना वो उसके साथ एग्री नहीं करता, लेकिन यहाँ पे अजीब है, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हालांकि उसी ने तो फेट का जो कंसेप्ट था उसको तोड़ा था। उसने कहा था ट्रेजेडी हैपेंस नॉट बिकॉज ऑफ फेट बट बिकॉज ऑफ कैरेक्टर, बिकॉज ऑफ ट्रेजिक फ्लॉज, बिकॉज ऑफ एरर ऑफ जजमेंट। उसने खुद ही फेट को डिफेंड करके सारा जो मुद्दा था वो डाल दिया उसने कैरेक्टर के ऊपर। और यहाँ पे कहता है पोएटिक जस्टिस, दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर अ ट्रेजेडी। बहरहाल ये ध्यान में रखिएगा, एक शॉर्ट पॉइंट, इज नॉट एग्री विद पोएटिक जस्टिस। एक आप पोएटिक जस्टिस का जो डिफाइनिंग इसका कंसेप्ट है ये आपको आना चाहिए। मीनिंग समझ लें या मफहूम समझ लें या उसकी डेफिनेशन समझ लें। ये छोटे छोटे जो मेरे प्लॉट क्या है, पोएटिक जस्टिस क्या है, प्लॉट की किस्में कितनी है, और ट्रेजेडी उसका प्रोसेस क्या है, ट्रेजेडी का मीडियम क्या है, पोएटिक पावर क्या है, या क्या है, कॉमेडी की डेफिनेशन क्या है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं।
ये आपको इस तरह के पॉइंट्स इस रेफरेंस से आने चाहिए। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं, एक असाइनमेंट आप लोग रेडी करें और साथ साथ ही रेडी करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो एकदम से वो सारा आपके ऊपर एक प्रेशर होगा कि आपने ये भी टॉपिक तैयार करना है। छोटी छोटी डेफिनेशन है, फर्स्ट टॉपिक उसको रिमाइंड करें। फर्स्ट टॉपिक में हमने इमिटेशन को डिस्कस किया था। इमिटेशन, उसके ऊपर प्लेटो का अटैक और उसको फिर डिफेंड कैसे किया एरिस्टोटल ने। अगला टॉपिक हमारा था ट्रेजेडी और उसके पार्ट्स के ऊपर। ट्रेजेडी के 6 पार्ट्स होते हैं, एक एक पार्ट का आपको मीनिंग आना चाहिए, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ये हमारा दूसरा टॉपिक था। तीसरा टॉपिक आज जो हम वो, एक तो सारा व्यू मैंने पिछला ये वर्ड्स हमने किया था। ये जो है आज का हमारा टॉपिक है ट्रेजिक हीरो के ऊपर, आइडियल ट्रेजिक हीरो। पहला टॉपिक इमिटेशन पे था, दूसरा टॉपिक डिस्कशन हमारी थी ट्रेजेडी और उसकी डेफिनेशन और उसके पार्ट्स के ऊपर। आज की तीसरी हमारी हीरो के ऊपर है, ट्रेजिक हीरो के ऊपर। आइडियल ट्रेजिक हीरो कैसा होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने ऊपर 1.5 लाइन में लिख दी है। और पोएटिक जस्टिस क्या है, और आप देखें कि इसमें जो ट्रेजिक हीरो है उसके अंदर हमाशिया है। हमाशिया की डेफिनेशन ये इतना आसान है कि आपने पार्ट 1 में एडिपस पढ़ते हुए ये वो सारी पोइटिक्स लिखी एडिपस के ऊपर गई है। ये सारी जो क्रिटिसिज्म है पोइटिक की, ये एडिपस को सामने रख के, एडिपस रेक्स को सामने रख के उसके ऊपर लिखा गया। ट्रेजाई कॉमेडी क्या है, ट्रेजाई कॉमेडी को पसंद नहीं करता, ध्यान में रखिएगा। ये भी एरिस्टोटल इसको पसंद नहीं करता। ये यहाँ पे लिखा हुआ है एरिस्टोटल इज अगेंस्ट ट्रेजिक कॉमेडी। वो कहता है या तो ट्रेजेडी हो तो मुकम्मल ट्रेजेडी हो, कॉमेडी हो तो मुकम्मल कॉमेडी हो, इनका इनका मिक्सचर नहीं करना चाहिए, इन दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। ये तो था ग्रीक दौर के अंदर। लेकिन आज के दौर में जो मॉडर्न ट्रेजेडी है उसमें, आज के दौर की जो मॉडर्न ट्रेजेडी है उसके अंदर ट्रेजाई कॉमेडी चलती है। आपने आज के दौर की ट्रेजाई कॉमेडीज पढ़ी हैं, जिसमें चेरी ऑर्चर्ड भी एक ट्रेजाई कॉमेडी है, वेटिंग वेटिंग फॉर गॉडो भी एक ट्रेजाई कॉमेडी है। जितनी भी पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है उसके अंदर में मोस्ट ऑफ दी स्टोरीज ट्रेजेडीज आर ट्रेजाई कॉमेडीज। और हमाशिया की डेफिनेशन यू नाउ, हमाशिया ट्रेजिक फ्ला, ये एक ही वर्ड के दो मुख्तलिफ नाम है। और एरर ऑफ जजमेंट इनका कंसेप्ट है, इनका मीनिंग है। हमाशिया दिस इज एरर ऑफ जजमेंट। उसके बाद यहाँ पे भी जो नेक्स्ट उसने डील किया है वो इमोशंस को डील किया है, इमोशंस ऑफ पिटी एंड फियर थ्रू किथारसिस। वर्ड किथारसिस उस दिन मुझे जस्ट एक मामा ने सेंड किया लिख के, जो किथारसिस का जो डिफाइनिंग पॉइंट उसी ने लिख के सेंड किया और किसी ने लिख के सेंड नहीं किया। इतने आप मेहनती बच्चे हैं। तो अगर कोई एक छोटा सा पॉइंट मैंने कह दिया था तो सवाई एक बच्चे की किसी ने हिम्मत नहीं की। तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है इसमें आइडियल ट्रेजिक हीरो के ऊपर इसकी डेफिनेशन भी इसके अंदर है, इसको भी आप देख लें। जस्ट वेट फॉर अ मिनट।
ये जो वर्ड जस्टिस है नीचे वाले पैराग्राफ में, ये वही है पोइटिक जस्टिस, जिसमें रीडर समझते हैं कि फलां को उसके करेक्टर फ्लॉ की वजह से सजा मिलनी चाहिए। दिस इज पोइटिक जस्टिस। ये जो यहाँ पे बोल्ड हुई है, ये भी डेफिनेशन ही है। मस्ट बी एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ पर्सन, नॉट preeminently just and virtuous, whose misfortune however is brought upon him not by vice or depravity but by some error। यहाँ पे इसने जो राइटर का फॉल्ट है उसको बड़ा लाइट कर दिया एरर ऑफ जजमेंट का नाम देके। उसने कहा कि उसके अंदर वो बुरा नहीं होता, बस उसके अंदर एरर्स ऑफ जजमेंट होती हैं। ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बस जजमेंट की मिस्टेक होती है उसके अंदर। नेक्स्ट भी जो टर्म्स आ रही हैं, हमाशिया है, ट्रेजिक फ्लॉ है, ट्रेजिक फ्लॉ एंड हमाशिया, ये जो वर्ड्स हैं, ये तीनों वर्ड ये जस्ट एक दूसरे के मुख्तलिफ शक्लें हैं। ट्रेजिक फ्लॉ, दिस हमाशिया, एंड हमाशिया मीन्स एरर ऑफ जजमेंट। जी, इसके बाद तो लास्ट टॉपिक है कैथारसिस के ऊपर है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि आपके जो पेपर हैं, जो प्लान है, ये प्लान बी का चल रहा है, उसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्लान है, दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव तरीके से। और ज्यादा चांसेस हैं कि सब्जेक्टिव पेपर ही होने के। ऑब्जेक्टिव का जो है ना, वो भी अगर होता है तो उसके अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट, डेफिनेशन शामिल होगी। ये वही कैथारसिस की प्रेजेंटेशन के ऊपर मैक्सिमम आपका पेपर जो है वो आधा पेपर उस तरह का हो सकता है जिस तरह सरगोदा यूनिवर्सिटी शॉर्ट क्वेश्चन रेडी करती है 40 नंबर 20 नंबर के, वो बढ़ा देंगे, वो 50 नंबर के वो कर देंगे, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर देंगे। बड़ा भी हुआ तो ये इस तरह का, ये मुकम्मल तौर पे ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, ये नहीं कि 4 पॉइंट्स और उनमें से एक को चूज करना है, ऐसा मुकम्मल नहीं होगा। वो बनाएंगे उस तरह का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, 2 पार्ट्स बना सकते हैं उसके, जो फर्स्ट उनका प्लान है उसमें। दुनिया वैसे अब कोरोना से तंग आ गई है, लगता नहीं है कि आप इससे ज्यादा इसको लंबा करें। तब तक चलिए, महीने 2 महीने के बाद इसका जोर टूट गया तो पेपर आपके सब उसी ट्रेडिशनल तरीके से हो जाने हैं जो पहले तरीका है, वही 4 पेज का एक सवाल लिखना, 2 महीने के बाद वही तरीका हो जाना है, मेरा तो ख्याल है। इसलिए बहरहाल आप दोनों तरीकों से अपने आप को रेडी रखें। सब्जेक्टिव तैयारी तो पहले भी आपकी 80% हो चुकी थी, ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करके दोनों तरीकों से अपने आप को रेडी कर लो। इसका फायदा होगा, पेपर इस तरीके से हो या ना हो, लेकिन फिर इसका फायदा आपको आगे जरूर होगा। यानी जब आप लेक्चरर की जॉब के लिए जाते हैं ना, तो वहां पे सारा इसी तरह का शॉर्ट पॉइंट्स ही होते हैं, वहां पे ऑब्जेक्टिव होता है, 100 पॉइंट्स होते हैं और आपने मुकम्मल वो ऑब्जेक्टिव पेपर देना होता है। उसकी तैयारी फिर इसी तरह करते हैं, इसी तरह पॉइंट्स को निकाल के।